Hello dear students, welcome to our today's class. I hope you all are watching tutorial videos, revision videos. I hope you all are studying at home. Yes. Okay. So today we are going to see some brief questions of your chapter 7 lenses. Okay. So let's see the first question. The first question says give scientific reasons. Okay. And this is of 2 marks each. So here the first question is convex lens is also called a converging lens. Okay, I hope you all know that about what is converging lens, what is diverging lens. Okay, yes, we already learned about this. Now here what is the reason behind this? So here when the rays of light coming parallel to the principal axis, after refraction through the lens, it pass through a point that is called as what? Focus. ओके सबको पता है कि फोकस कहाँ पर होता है. येस. सो सिंस इट कन्वर्ज ऑल द रे एट वन पॉइंट, तो वो वन पॉइंट जो होता है वहाँ पर जाके सब रेज जो हुए वो कन्वर्ज हो जाते हैं, वो एक साथ मिलते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी अ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस. Second question, nearsightedness. This defect can be corrected by using spectacles with concave lens. ओके तो जिसको नियर साइटेडनेस ये डिफेक्ट है उस वो लोग वो क्या यूज़ करते हैं? कॉन्केव लेंस. ओके सो व्हाई दे यूज़ दिस काइंड ऑफ लेंस? लेट्स सी. फर्स्ट, दिस लेंस diverges the incident rays and this diverged rays can be converged by the lens in the eye to form the image on the retina. ओके जब तक रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होती तब तक क्या होता है? वी कांट सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ओके सो रेटिना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइज. ठीक है. सो हियर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. सो अ लेंस विथ नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस. ठीक है. So the power of the lens is different for the different eyes and it is depending upon what? Magnitude of their near sightedness. Okay, तो उसमें कौन सा स्पेक्टाकल यूज़ होता है? कॉन्केव लेंस वाला ही. ठीक है, बिकॉज कॉन्केव लेंस हैविंग फोकल लेंथ नेगेटिव, और जिसका नेगेटिव फोकल लेंथ है वही यूज़ होता है नियर साइटेडनेस में. ठीक है. ओके. Now the third question is simple microscope is used for watch repair. First, when an object is placed within the focal length of convex lens, one get a magnified and erect image of the object. Yes, हम सब ने देखा है कि जब हम लेंस रखते हैं तो हमको इमेज कैसा दिखता है? मैग्नीफाइंग इमेज. ठीक है. Thus, the watch repairer can see the minute parts of the watch more clearly with the help of simple microscope than the naked eye. ओके तो माइक्रोस्कोप से जितना अच्छा दिखेगा उतना हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. दैट्स वाई माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं टू फाइंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सम काइंड ऑफ प्लांट, और अगर कुछ एनिमल होगा तो, और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप वी यूज्ड, so that we will get its magnified image. Okay, yes, so magnification of about 20 times is obtained by simple microscope and hence simple microscope is used for watch repair, so that वो जो watch वो जो है वो जो रिपेयर कर रहा है वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें देख सके, and so that he is able to repair the watch. ठीक है. Okay, fourth, one can sense the colors only in bright light. The retina of our eye is made up of different cells. Rod shaped cell होते हैं, conical shape like cone shape. The rod shaped cells respond to intensity of light and send the information to brain, while cone shaped cell send the information of different colors of light to the brain. तो ये दोनों जो है रॉड शेप एंड कोन शेप दे प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके सो रॉड लाइक सेल्स आर सेंसिटिव टू फेंट लाइट whereas the conical cells do not respond to faint light, hence one can sense the color in bright light. Okay,
Write the distinguish between the following concave lens and convex lens. Okay, तो concave lens क्या होता है? It is thinner at the center than the edges, and here it is thicker at the center than the edges. It is called as diverging lens. concave lens को diverging lens बोलते हैं and convex lens को बोलते हैं converging lens. Okay, the nature of the image formed is always diminished and erect. The image is formed between the focus and the optical center. Okay, तो ये image जो होती हैं वो कैसी होती हैं? Diminished, small होती है. The nature of the image formed depends upon the position of object. Okay, it forms only virtual image. concave lens में virtual image ही form होता है, but convex lens में real and virtual image form होता है. ठीक है. Okay, now far sightedness and near sightedness I have written over here. The distinguish between these two is given over here. Students, please read it and remember it. छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है. यहाँ पे जैसे देखो, फार साइटेडनेस कब होता है? द प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू स्लाइट फ्लैटरिंग ऑफ द आई बॉल. आई बॉल में जब फ्लैटरिंग होता है, फ्लैट होता है वो थोड़ा, तब क्या होता है? फार साइटेडनेस. एंड जब आई बॉल इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है तब उसमें क्या दिखाई देता है? नियर साइटेडनेस. ठीक है. एंड दिस आर द अदर पॉइंट्स. प्लीज रीड दिस पॉइंट्स ऑल्सो. You will able to understand the difference between this both the two. These are very important, students. It will come for the exam. Myopia and presbyopia. Okay, myopia, this problem of vision arise due to slight elongation of eyeball or curved lens. This problem the near point of aged people recedes. यहाँ पे देखो, presbyopia जो होता है वो कब होता है? aged people. ठीक है. ओके, एज पीपल जो है उसमें ये जो डिफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. एंड हियर दिस डिफेक्ट मायोपिया, दिस कैन बी हैपन टू एनी वन. ठीक है. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग 3 मार्क्स क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, इन द फॉलोइंग पिक्चर द चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस वाइल सीइंग द डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन. कंप्लीट द फिगर बाय करेक्टली लेबल्ड डायग्राम. यहाँ पे देखो, ये जो है ये लेंस में क्या दिखाई देता है? यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया है और यहाँ पे ये एलोंगेटेड हो गया है. यस, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इमेज है. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे पेज नंबर 87, देयर यू विल गेट दिस 2 पिक्चर्स. ओके, इसका आंसर है यहाँ पे देखो. नाउ यू हैव टू, दिस इज़ द आंसर ऑफ लास्ट स्लाइड क्वेश्चन, राइट? ओके, यहाँ पे देखो, लेंस बिकम्स फ्लैट. ओके, एंड हियर लेंस बिकम्स राउंडेड. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है पता नहीं है हमें, तो वहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है रेटिना पे. ठीक है. बट यहाँ पे क्या होता है? लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यही कहीं पे है और वो लाइट यहाँ से जाके फॉर्म हो रही है रेटिना पे. ठीक है. तो ये उसका आंसर है कि आपको ये नेमिंग लिखना है और कहाँ से लाइट आ रही है वो भी आपको लिखना है. एंड इफ़ यू वांट टू राइट सम एक्सप्लेनेशन, देन इन पेज नंबर 87 ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिया है, वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है. सो यू कैन राइट इट डाउन. ओके, बिकॉज दिस इज़ ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल. ठीक है. ओके, नाउ यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम दिया है एंड यू हैव टू फिल दिस डायग्राम. ओके, फर्स्ट है यहाँ पे, ये क्या है? ये जो राउंड वाला है, या इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, एंड वी हैव टू राइट इट्स फंक्शन ऑल्सो. द लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट टू द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज, एंड दिस लेंस क्रिएट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सेकेंड कौन सा है यहाँ पे? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दे हेल्प टू कन्वे इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन. ओके, थर्ड क्या है? दिस इज रेटिना, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना, द सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड and produced electrical signal.
और ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ये लेंसेज से थोड़ा सा, यहाँ पे देखो यू कैन सी, ये लेंसेज से थोड़ा सा आगे है, उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज, दैट इज़ अ प्यूपिल. प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइडन्स डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द आई. ओके, तो प्यूपिल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट होना, वाइड होना, ये किसका काम है, प्यूपिल का. So like this also question will come, you have to write, you have to give the naming and you have to write its function. Okay, now this diagram will be given to you and you have to correct its diagram and explain the phenomenon. यहाँ पे दो लेंस हैं, ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमने ये लेंस जो है ये यूज़ किया है. ओके, दो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे एंड वी हैव यूज्ड ओवर हियर, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड ओवर हियर. तो ये क्या शो करता है, कौन सा डिफेक्ट है, दिस शोज अ मायोपिक आई in which the eye lens is unable to focus the light rays coming from the distant object onto the retina. So that's why the image of the distant is formed before the retina. Okay, ये retina के पहले ही उसका image form हो जाता है. To correct this we have to use which lens, here we have to use a concave lens. ये concave lens यहाँ पे used हुआ है, okay, of a proper focal length. ध्यान में रखने का है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ऐसे होता है, ओके, हाफ कर्व्ड लाइक दैट, एंड कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, ऐसे होता है, कॉन्केव लेंस हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, ओके. सो दैट दे रीच द रेटिना आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड द पर्सन कैन सी द इमेज क्लियरली, ठीक है. ओके, now draw a neat label diagram of hypermetrophic eye in its correction. ओके, यहाँ पे एक ही लेंस है, हाइपरमेट्रोफिक आई है, हाइपरमेट्रोफिया बोलते हैं उसको. तो यहाँ पे हमने और एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया सो दैट द इमेज विल फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. यहाँ पे देखो आप, ये रेटिना से पीछे जा रहा है, ओके, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, ठीक है. तो हमें रेटिना के ऊपर ऐसे फॉल करना है, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड कॉन्वेक्स लेंस ओवर हियर. ओके, हाइपरमेट्रोफिया ये डिफेक्ट होता है इसमें, ठीक है. डिफेक्ट का नाम भी पूछ सकते हैं कि क्या डिफेक्ट शो होता है इसमें, जब हमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, लेंसेज रेटिना के पीछे, ओके. तो हाइपरमेट्रोफिया हुआ है उसको, और वो कैसे करेक्ट हो सकता है, बाय यूजिंग वन कॉन्वेक्स लेंस. राइट द लॉज इन द गिवन फिगर. हाँ, ये जो लॉज है ये आपके टेक्स्ट बुक में है, उसका ही पिक्चर लिया है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ओके, सेकेंड, व्हेन द इंसिडेंट रे पास्ड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और जब वो कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तब वो क्या होती हैं, रिफ्रैक्ट नहीं होती हैं, वो सीधा एक ही लाइन में चली जाती है. ओके, यहाँ पे वन पैराग्राफ इज गिवन, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड यू हैव टू राइट इट्स आंसर. स्टूडेंट रीड दिस पैराग्राफ एंड चेक योर आंसर विथ दिस आंसर्स. ओके, यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट में दिया है वो एकदम स्ट्रेट दिया है, जैसे आपको यहाँ पे प्लेस्ड करना है द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा है. बट ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ओके. एग्ज़ाम में कुछ और होके आ जाएगा, लाइक ये यहाँ पे आएगा, फिर नियर पॉइंट एक इधर यहाँ पे आएगा. अभी ये स्ट्रेट ऐसे दिया है बाय मिस्टेकली, ओके. द आंसर्स आर गिवन लाइक दिस एंड ऐसे ही आंसर्स है यहाँ पर, but in exam it will come like some will show your here like that. Okay, so you have to read the paragraph very carefully. लास्ट का आंसर है फार पॉइंट ऑफ द आई, जो यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, रिमेंबर. सेकेंड पैराग्राफ, अगेन दिस पैराग्राफ इज गिवन विच इज़ गिवन करेक्टली. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, द रेटिना इन द आई इज़ मेड अप ऑफ मैनी light sensitive cells. These cells are shaped like a rod and like a cone.
द रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, ऐसे आप यहाँ पे देखते जाओ कि क्या आंसर कहाँ पर आएगा एंड रीड दिस। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन विद अ रे डायग्राम द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द वेरियस इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो पोजीशन दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कहाँ पर है वो पता नहीं है। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, F2 पे। ओके, ये इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड, जो दिखाई नहीं देता है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो हमें इमेज कैसे दिखाई देगा, नो, इट विल बी वेरी स्मॉल। ओके, देन बियॉन्ड 2F1, 2F1 के यहाँ पे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। ठीक है, ओके, डिमिनिश्ड मतलब इससे छोटा। यहाँ पे देखो आप, इससे छोटा है। एट 2F1 ये इमेज यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है। ये यू कैन से दिस इज ऑफ सेम साइज। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिटवीन F1 एंड 2F1 ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है और वो फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, वो इमेज 2F2 पे। ओके, ये रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है, मतलब इससे भी बड़ा है। एट फोकस F1, यहाँ भी F1 पे ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो पता नहीं है, एट इन्फिनिटी, सो दैट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। बियॉन्ड द फोकस, यहाँ पर देखो F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ पे इमेज वी विल गेट इट रेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से भी ये इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, एनलार्ज। ओके, so this is about your today's class. Practiced everything, practice the numericals also, they are also important. Okay, and study hard. Thank you.